Good morning, church. What a privilege and an opportunity that the good Lord has given to all of us to gather again in this Sunday morning. Many people has gone by in this last 11 months, but here we are, standing in the presence of God, worshiping, getting the privilege to call upon the holy name this morning. What an awesome privilege it is that we have received from the sovereign Lord. This morning, wherever we are, whatever we do, let's take this time and say, Lord, we come to the throne of grace with a heart filled with gratitude. For you are great, your name is powerful. There's nothing impossible for you, God. Lord, we thank you and we cling on to that holy name this morning. Let's look to the Lord in prayer this morning as we begin this morning service. Our God, Heavenly Father, thank you for giving us the gift of life, an opportunity to celebrate and lift up your holy name along with the creation. Thank you for the privilege of seeing life for the last 11 months, oh God. As we stand in the holy ground, oh Father, we are weak and vulnerable and broken, oh Father. We want you to come down this morning when 2 or 3 are gathered in your name. Your presence is there, oh Father. Lord, we pray that this service, oh Father, will be anointed, oh God. Your word will come through to us. Every song we sing, oh Father, will be, Lord, we lifting up your holy name, oh God. We thank you, God, privilege, oh Father. We humble ourselves, let your name be lifted up. We thank you. We ask this. We submit ourselves. We give you the glory. In Jesus' most precious name we pray. Amen, amen, amen. This morning, wherever you are, just look at the person who is just next to you. Maybe it is your husband or it is your children. Just say, I am victorious. I am victorious. I'm going to lift up the name of the Lord this morning. I'm going to start this morning service by saying something. 20, 30 years ago, when children go to their parents, they have this sense of fear. They always stand far and they have this reverence and respect. But today, when children, this generation, they come around and they just embrace their parents and they put their arms around. They just don't stand far away. They just come close to their parents and they say, Daddy, we love you. The more closer the relationship is, more stronger this relationship is. The people outside will know if something's going to happen to the children, the father's going to come out. This morning, the more stronger our relationship is, the enemy is just worried. The more stronger we are with God, the more closer we are with God, the devil is worried. This morning, that's what we're going to sing. Yeshu Masih is the one who's going to give us Deta Kushi. He's the one who's given us the joy, and that's not liked by the devil. And this morning, with hands lifted high, and with clapping and offering that we're going to give to the Lord by singing the song, Yeshu Masih, Deta Kushi, Kare Mahima Usaki. यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बागाश शान। ओ यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बागा शैतान। देखो बागा बागा, देखो बागा बागा, देखो बागा बागा शैतान। देखो बागा बागा, देखो बागा बागा, देखो बागा बागा शैतान। We're going to sing this song louder.
नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान ताली बजाओ नाचो गाओ देखो भागा शैतान ताली बजाओ नाचो गाओ देखो भागा शैतान ओ देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान is running देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान चलो यीशु बुलाता तुझे गिरने वालो उठो चलो यीशु बुलाता तुम्हें छोड़ दो डरना के मरना जिंदा हुआ है यीशु मसीह छोड़ दो डरना मरना जिंदा हुआ है यीशु मसीह देता खुशी अरे महिमा उसकी पैदा हुआ देखो भागा शैतान The devil is running because he is with us. The devil doesn't like when God is with us. झुक जाएंगे आसमान एक दिन यीशु राजा झुक जाएंगे आसमान एक दिन यीशु राजा देखेंगे दुनिया शान मसीह जुबान पर होगा एक गीत सभी देखेंगे दुनिया शान मसीह की जुबान पर होगा एक गीत सभी यीशु मसीह देता खुशी अरे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान he's running running he's running he's running he's running he's running away देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान hallelujah amen 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 hallelujah Lord we lift your holy name how awesome is your name O Father Lord Lord, there is no privilege more than calling your name, Father. In times of trouble, we can just call your name. In times of desperation, we call your name, O Father. In times of Lord, disappointments, the only name that can satisfy and comfort and embrace us is your name, O God. तेरी स्तुति आराधना हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी तू इशारों पर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया 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 हालेलुया
are unending. करुणा से तेरी नए दिन दिखाता है, दया से तेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, Hallelujah, 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 oh, hallelujah. Lift up your name on high and tell him hallelujah. Yes, you are great. Hallelujah. Parmeshwar tu mahan hai. Hallelujah. You set a table before the enemies of God. And Lord, you lift up our heads on high. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा को प्रभु है नहीं। सारे जहां में तुझसा नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु ही नहीं। घुटनों में दिखूं बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। Lift your name on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, तेरे स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इशारों पर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। Wherever you are, lift up your name on high and tell him, Lord, we lift you, we praise you. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. One last time we tell him hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, what a privilege we have, oh Father, to lift up your name high. There is no one like you in this world. There is no one who can, Lord, care like the way you care. There is no one who can love the way you love us. You're amazing, God, oh Father. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। तुमसा कोई नहीं, तुमसा अब है पूरा यकीन,
us sing this song together. We all sing. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। We'll tell him today, तुम सा कोई नहीं। There's no one like you, Lord. तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए मसीह हो। Lord, there's no one like you, Father. There's no one like you in this world who can love us, who can embrace us, who can, Lord, lead us and guide us, oh Father. There's none like you, God. People promise us. People tell that they are with us, oh Father, in times of desperation, but they leave us and go. It's only you who always stand by our side in times of disappointment and desolation. You're always there for us, oh God. Thank you. Lord, this morning there are people who are listening with lots of disappointment, brokenness, bondages, oh Father. Lord, we pray whatever their heart cries are. When we pray as a church, when, Lord, we lift up your name and, Lord, we intercede, there is miracles that will happen, oh Father. There is transformation that will happen, oh Father. There is power that is being, Lord, passed from here to their families. We pray for people, those who are right now crying for a healing. People, those who are praying for a job change. People, those who are looking for a transition. People, those who want to take decisions, oh Father. We pray that you will be with them, oh Father. You will guide them, oh Master, this morning. I request this morning Sister Vandana to pray for these requests. यीशु मसीह को बार हम तेरे दया के सिंहासन के तले आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, इतना सुंदर समय आपने तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए आपने हमें मौका दिया। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते, तेरे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते। तूने हमारे आंसुओं को पोंछा, हमें गले से लगाया, हमें हर एक दुर्घटना से बचाया। हम धन्यवाद देते। प्रभु जी, हमारी आराधना को ग्रहण कर, हमारी स्तुति रूपी बलिदान को ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह, आज हम एक मन होकर एक आत्मा के साथ
प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार है मेरे राजा, उन्हें तो चंगाई दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तेरे मार खाने से हमें शिफा मिला है। प्रभु जी, आपने कलवरी क्रूस पर जान को इसलिए दी ताकि हमें शिफा मिल सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना कर जो टूटे हुए हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपनी हर एक आशा को खो दिया है, प्रभु उनसे तो बातचीत कर, उन्हें गले से लगा, उनको बता कि प्रभु तू जीवित परमेश्वर है, तू अनंत काल का परमेश्वर है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हो कि तू अपनी आत्मा से भर, अपने अभिषेक से भर, अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी शांति, अपने प्रेम से हम सभी को तू भर दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं लोगों की तू प्रार्थना को सुन को उत्तर को दे। प्रभु, आने वाले पिता बाकी की सभा को तेरे हाथों पे समर्पण करते, तू वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर। प्रभु, पास्टर के द्वारा हमसे तो बातचीत कर। प्रभु, होने दे कि हमारी जिंदगियों में एक परिवर्तन आ जाए। प्रभु जी, तेरे नाम ऊंचे में उठाते, तेरे नाम की महिमा करते। धन्यवाद यीशु, सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हुए ये प्रार्थना हमारे खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनो गण का पिता, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्यारे नाम में सबको जय मसीह की। NLAG चेन्नई की हिंदी ऑनलाइन आराधना में फेसबुक, यूट्यूब और हमारे ऐप के द्वारा जुड़े सब भाइयों बहनों का तहे दिल से स्वागत है। आज की आराधना में परमेश्वर हमें स्पर्श करने जा रहा है, हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर निश्चय ही पूरा करेगा। जिस मकसद से हम लोग आज जुड़े हैं इस ऑनलाइन आराधना में, उन सबको पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक हर एक के ऊपर जो आज ऑनलाइन आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति में आया है, सबको परमेश्वर छुएगा। परमेश्वर का वायदा है, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊँ वहाँ वहाँ मैं आकर आशीष दूंगा। हालेलुया। आज अपने घरों में बैठकर परमेश्वर की आराधना हम लोग कर रहे हैं। निश्चय जानिए परमेश्वर की उपस्थिति आज आप लोगों के पास आएगी, क्योंकि उसका वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो आपके निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आना है, अपने मनों को हम तैयार करेंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें स्पर्श करेगा, हमारी उम्मीदों को पूरा करेगा। यदि हम बीमार आए हैं, परमेश्वर हमारे को जो छुएगा उसके कोड़े खाए हुए हाथ से हमें स्पर्श करेगा और हम लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे। हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। जो बेरोजगार आया है उनको परमेश्वर निश्चय ही नौकरी की आशा को उनके जीवन में उदय होते हुए देखेंगे हम लोग। हालेलुया। आने वाले दिनों में बहुत से चिन्ह और चमत्कार की गवाहियां हम लोग सुनेंगे। परमेश्वर के उपस्थिति में हम लोग हैं, परमेश्वर की स्पर्श को हम लोग जो है इच्छा रखेंगे। परमेश्वर हर एक को छुएगा और परमेश्वर सबको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान और सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। आज वो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए विनती कर रहा है। हालेलुया। हमारे जरूरतों के लिए विनती कर रहा है, हमें सुधारने के लिए विनती कर रहा है। हम लोग आगे बढ़ें, आत्मिक रीति से विकास हमारा हो, हम लोग उसके करीब आएं, उसकी इच्छाओं को जानकर उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। उसके लिए परमेश्वर हमारे लिए विनती कर रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह लगभग 2000 साल पहले इस संसार में आया था हमारे खातिर, मानवता के खातिर उसने अपने जान को दी। उसने कोड़े खाए, दुख सहा, कष्ट सहा, हमारे लिए निर्धन हो गया और उसने क्रूस की मृत्यु सही ताकि हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाए। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे अपने अस्तित्व के लिए। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति बहुतायत का जीवन इस संसार में जिए, और जब वो अंत समय में
परमेश्वर के पास आए और हमेशा हमेशा के साथ समय हमेशा हमेशा उसके साथ बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हमेशा हम उसके साथ संगति करें। हालेलुया। परमेश्वर इतना महान है, इतना प्यारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी स्तुति और उसकी महिमा हमेशा हमारे जबान से, हमारे हालेलुया कामों से होती रहनी चाहिए। हालेलुया। आज जो भी आज ऑनलाइन इस आराधना को देख रहा है, अभी तक गीतों को गाया, परमेश्वर की नाम की महिमा की सूचनाओं को अभी तक आप लोगों ने देखा होगा। हमारी आराधना NLAG के चर्च में चेन्नई में सईदापेट में सी हॉल में होती है। आप लोग यदि चेन्नई में रहते हैं, आप लोग आकर जो है परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए उस आराधना में जुड़ सकते हैं और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और हम मेरे से संपर्क करें यदि प्रार्थना का कोई अनुरोध है या कोई बात है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, सेवकाई में आप लोग भाग लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आप लोग नोट कर लें जो कि सूचनाओं में आया होगा और मैं आप फिर से बता देता हूं। और आप लोग नोट करके मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए उसकी सेवकाई में जुड़ सकते। चेन्नई में बहुत से हिंदी भाषी लोग हैं जिनको जो है सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। हम लोगों को संदेश देना है, उनको बताना है यीशु मसीह के बारे में, और वे लोग जो है यीशु मसीह को ग्रहण करके आशीष के जो है हकदार होंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप लोगों को, जो जिसके दिल में परमेश्वर बोझ डाल रहा है, परमेश्वर के नाम को जो है हम लोगों को बताएं। हालेलुया। बहुत से माइग्रेंट्स हैं जो उत्तर भारत से चेन्नई में आ गए, उनके लिए जो है ये अच्छा अवसर है। हम लोग जाकर सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं और जो है परमेश्वर हमें भी आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बड़ा प्यारा परमेश्वर है। निश्चय जानिए, आप लोगों को जो दुखी आए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में खुशियां भरेगा, आनंद को भरेगा। परमेश्वर भला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का हर एक पल परमेश्वर जो है आशीष का देने वाला है। परमेश्वर हालेलुया सबको आशीष देगा। जब हम इधर संदेश को सुनकर उठेंगे, निश्चय ही परमेश्वर जो है हमें आशीष से भरेगा। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करें, अपने मनों को तैयार करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। तू महान और सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। आज तू हमारे बीच में है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि तेरा वायदा है, 2 या 3 जब तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां तू मौजूद होता है। परमेश्वर तू हमारे बीच में है। परमेश्वर हर एक को तू स्पर्श कर। परमेश्वर हालेलुया। स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर इस वक्त प्रार्थना करते हैं मानवता के लिए। परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति, परमेश्वर इस संसार में हर एक व्यक्ति परमेश्वर तेरे नाम को जान जाए और परमेश्वर उद्धार को प्राप्त कर सके, ऐसा अनुग्रह कर। परमेश्वर तो उतर कर आ परमेश्वर, एक जागृति को भेज परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो बीमार है परमेश्वर हालेलुया, जो बीमार जुड़े हैं आज इस ऑनलाइन आराधना में, परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा और उनको छू परमेश्वर। हालेलुया। वचन को भेजकर चंगा करने वाला यहोवा है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा राफा परमेश्वर। हालेलुया। इसी वक्त प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति को जो बीमार आया है परमेश्वर, उनको छू, उनको चंगाई दे यीशु के नाम से। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो अस्पतालों में है, घरों में है परमेश्वर। हालेलुया। उनको परमेश्वर चंगाई दे। हालेलुया। महामारी शीघ्र परमेश्वर हालेलुया खत्म हो जाए परमेश्वर, और सामान्य रीति से हम लोग संगति कर सकें, सामान्य जीवन बिता सकें, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर भारतवर्ष के लिए परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर भारत का हर एक नागरिक जान जाए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। प्रार्थना करते हैं भारत के शासकों के लिए परमेश्वर। हालेलुया। उनकी मन की आंखों को खोल दे परमेश्वर। हालेलुया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो ऊंचे पद में विराजमान है, वे लोग जान जाएं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। जागृति की लहर को भारत में भेज परमेश्वर। हालेलुया। हर एक व्यक्ति सच को जान जाए, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। तू बड़े और हम घटे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, बहुत से विद्यालय खुल गए हैं परमेश्वर। हालेलुया। जो छात्र परमेश्वर विद्यालय जा रहे हैं परमेश्वर, निडर होके जा सकें, उनको अपना सुरक्षा प्रदान कर परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर। वे लोग सुरक्षित रूप से परमेश्वर चर्च परमेश्वर जा सकें और परमेश्वर पढ़ाई कर सकें, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। तू बड़े और हम घटे। आज परमेश्वर जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उसमें परमेश्वर आशीष हो परमेश्वर। हालेलुया। हर एक के दिल में काम करे और परमेश्वर हालेलुया तेरे करीब आ सकें, आशीष के हकदार हो सकें, ऐसा तू कर परमेश्वर। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू काम कर। हालेलुया। स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तू देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एक बार और से परमेश्वर का वचन हम ध्यान करने जा रहे हैं। वचन जो है बाइबल में से निकालेंगे। पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 1 अध्याय 9वां वचन।
पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 1 अध्याय 9वां वचन, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के करीब आना और उसके साथ संगति करना। परमेश्वर के साथ रहना एक सौभाग्य की बात है। परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जिसने सब कुछ बनाया है, हालेलुया, जो कुछ हमें दिखता है वो सब उसने बनाया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका आविष्कार भी नहीं हुआ, जो दिखता नहीं है, उन सबको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। हालेलुया, परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, उसकी महिमा हमेशा होती रहे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के करीब आना और उसकी संगति में रहना बहुत आशीष की बात है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसके साथ रहें, उसकी संगति में रहें, हमेशा उसके हाथ को पकड़कर हम जीवन को बिताएं। परमेश्वर ये चाहता है। हालेलुया, निर्गमन की पुस्तक 29:45 में लिखा है, और मैं इजराइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर ने पुराने नियम में, जब से परमेश्वर ने संसार को बनाया, आदम को बनाया, आदम के समय में परमेश्वर ठंडा दोपहर के समय में जो है आदम के साथ घूमता था। हालेलुया, परमेश्वर आदम के साथ रहता था। और हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं 29:45 में वो कहता है, और मैं इजराइलियों के मध्य निवास करूंगा, उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि हमारा परमेश्वर रहे। हम लोग जो आत्मिक इजराइली हैं, हमारा परमेश्वर होना चाहता है, वो हमारे बीच में रहना चाहता है, वो हमारा परमेश्वर रहना चाहता है। हालेलुया, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 26:12 में लिखा है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। वो हमारे बीच में चला फिरा करेगा। जैसे आदम के समय में वो उसके साथ चला फिरा करता था, आज भी वो चाहता है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हम देखते हैं कि उन समय में, पुराने नियम में भी परमेश्वर चाहता था कि लोगों के बीच में रहे, चला फिरा करे और उनका जो है रास्ता बताए, उनको कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो सब परमेश्वर चाहता था। आज भी हमारा परमेश्वर वही कभी ना बदलने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। वो चाहता है कि हमारे बीच में चला फिरा करे। हमें चाहिए परमेश्वर के को जो है हम अपने साथ रखें। हालेलुया, उसकी चाहत हमारे जीवन में हो। हालेलुया, परमेश्वर इतना महान है। हालेलुया, कितना आशीष की बात है कि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। जब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं तो वो हमारे नजदीक आता है। जब भी हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, उसी समय हमारे बीच में आ जाता है। हालेलुया, परमेश्वर इतना महान और सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सब जगह मौजूद होने का सामर्थ्य उसे है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर को जो है अपने साथ रखिए, समीप रखिए, उसको हर क्षेत्र में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उसको जो है याद कीजिए। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ रहें और हमेशा उसके साथ रहें, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें उसकी उपस्थिति की, उसके होने की, उसकी उपस्थिति की हमें चाहत होनी चाहिए। हमारे मन में जुनून होना चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए परमेश्वर के साथ रहने की। जब हम परमेश्वर के साथ रहने की इच्छा रखेंगे, परमेश्वर हमारे बीच में आएगा। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर जो है हम अपना हाथ रखेगा और हम जो है सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। भजन लिखने वाला कहता है 27:4 में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। परमेश्वर के ऊपर अपने मन को लगाए रखूं। उसने एक वर मांगा, दाऊद ने एक वर मांगा। वो कहता है उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की दृष्टि पर लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ऐसा वर दाऊद ने चाहा और वो चाहता था कि हमेशा वो मंदिर में रहे, वो परमेश्वर की ओर अपने नजरों को लगाए रखें। हमें भी चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत रखें। भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारा इतना प्यारा है, हर वक्त हमें जो है रास्ता दिखाने के लिए तैयार रहता है। परमेश्वर ने हम मानवता के लिए स्वर्ग से उतर कर आकर हमारे लिए स्वर्ग में जाने का रास्ता खोला। हालेलुया, स्वर्गदूत हमारे से एक स्थान ऊपर
परमेश्वर ने बनाया है, हमसे ऊपर रखा है स्वर्गदूतों को, लेकिन स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर उतर के नहीं आया। जब स्वर्गदूतों ने पाप किया तो उनको उसने छोड़ दिया, उसने घेर दिया। लेकिन मनुष्य ने जब पाप किया, आदम ने जब पाप किया, परमेश्वर ने तुरंत योजना बनाई कि वो इस संसार में उतर कर आकर हमारे लिए जो है अब कुर्बान होगा। हालेलुया। और उसने वो पूरा भी किया। हालेलुया। यीशु मसीह जो कि हमारा प्रभु है, परमेश्वर इस संसार में उतर कर आकर उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए कि हम लोग जो है अनंत जीवन प्राप्त करें, उसने अपनी जान को दी। उसने अपनी जान को दी और यही नहीं, अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया, निर्धन हो गया। हमारे सांसारिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए उसने कोड़े खाए, दुख सहा, खून बहाया। हालेलुया। उसने एक प्रावधान रखा, जो भी उसके कोड़े खाने पर जो है विश्वास करता है तो वो जो है चंगा हो जाता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा इतना प्रेमी परमेश्वर है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता रखा है कि हम लोग जो है स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं यीशु मसीह पे विश्वास करने से। भाइयों और बहनों, परमेश्वर के साथ का हर एक क्षण, बिताया हुआ हर एक क्षण आशीष का होता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, इसलिए चाहता है कि वो हमारे बीच में चला फिरा करे, हमारे लिए जो है वो प्रभु बने। हालेलुया। वो इसीलिए वो चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें भी चाहिए कि परमेश्वर की सन्निधान की चाहत रखें, एक जुनून रखें, एक तीव्र इच्छा रखें परमेश्वर की उपस्थिति की। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। हालेलुया। हम अपने दिन में जब भी हम शुरुआत करते, दिन की शुरुआत करते हैं, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को परमेश्वर के लिए रखिए, क्वालिटी टाइम को परमेश्वर के लिए रखिए। कुछ समय जो है गीतों को गाइए परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाइए, स्तुति कीजिए। परमेश्वर ने जो भी जीवन में आपके किए हैं उन सबको याद करके उसको धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। क्वालिटी टाइम को परमेश्वर के सन्निधान के लिए रखिए और वचन को पढ़िए और उसमें मनन कीजिए और परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को याद कीजिए। हालेलुया। उसको प्रथम रखिए हर काम में। परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन को जो है आशीष देगा। हालेलुया। पर सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के नजदीक आएं और जो है उनकी संगति में रहें, परमेश्वर की उपस्थिति की तीव्र इच्छा आपके मन में होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे भजन लिखने वाले कहता है कि हमेशा मैं यहोवा की दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, वैसी इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए। और क्वालिटी टाइम निकालिए भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर के लिए जो है समय निकालिए और बैठिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को याद कीजिए, अपने जीवन के हर एक बात को उसको बताइए। परमेश्वर निश्चय ही आपको जो है आशीष देगा। हालेलुया। दूसरी बात, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को निस्संदेह जीवन में लागू करना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को बिना शर्त के हमें निस्संदेह जो है अपने जीवन में लागू करना पड़ेंगे। लूका की पुस्तक 11:28, धन्य हैं वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही नहीं है, उसकी उपस्थिति की जुनून रखना ही काफी नहीं है, उसके वचनों को जो हम मनन करते हैं, पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करना। हालेलुया। उसे करना है। अब्राहम एक व्यक्ति था, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने संबंधियों को, अपने संपत्ति को, सब कुछ छोड़कर तू जहां मैं बोलता हूं वहां चल, उसने विश्वास करके आगे बढ़ा। हालेलुया। जो भी परमेश्वर ने उससे कहा उसने किया। हालेलुया। और वो जो है धर्मी ठहरा। हालेलुया। विश्वास का पिता बना। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 26:5 में, अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। जो भी परमेश्वर ने अब्राहम को कहा उसने उसे किया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें भी परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, उसको अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया। उसको करना है। हालेलुया। याकूब कहता है हम सिर्फ वचन को सुनने वाले ही नहीं, हमें अपने जीवन को उसके अनुसार ढालना भी चाहिए। हालेलुया। सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसको ढालना भी है। हालेलुया। इससे हम परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखाते हैं। जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के प्रति हम प्रेम को दिखाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के
प्रेम को दिखाते हैं, परमेश्वर को अपने प्रेम को दिखाते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। अब अपनी इच्छा को जो हमारे लिए उसने बनाई है, योजना को जो हमारे लिए बनाई है, वो हमें प्रकट करता है। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति का जुनून रखें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उसको अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर अपने आप को हमें प्रकट करेगा। यूहन्ना की पुस्तक 14:21 में इस प्रकार लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को प्रकट करूंगा। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब हमें वो प्रेम रखेगा, हमसे प्रेम रखेगा। हमारा उस यीशु मसीह हमसे प्रेम रखेगा और पिता भी हमसे प्रेम रखेगा। हालेलुया। और जो है वो हम अपने आप को हमें प्रकट करेगा। हालेलुया। हम उसको देख पाएंगे। हाले कितनी सौभाग्य की बात है। परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, सब कुछ बनाने वाला, वो हम उसे हम देख पाते हैं। कितना अच्छी बात है। हालेलुया। परमेश्वर ये हमें सौभाग्य प्रदान करेगा। हमें चाहिए कि परमेश्वर की वचनों को जो है सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, अपने जीवन में लागू भी करें। हालेलुया। तीसरी बात, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। इब्रानियों की पुस्तक 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास अंधे की वस्तुओं का निश्चय है। हम विश्वास कैसे करें जब हमारे पास कुछ पकड़ने को नहीं है, हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, हम कैसे विश्वास करें? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। परमेश्वर है, हालेलुया, जो उसको खोजते हैं उसको प्रतिफल देता है। यदि इब्रानियों की पुस्तक 11:6 में पढ़ें तो बिना परमेश्वर के विश्वास किए हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, हालेलुया, गीतों के जरिए से परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो परमेश्वर उधर होता है। हालेलुया। और हमें खोजने का प्रतिफल भी देता है। हालेलुया। उसके बदले में हमें जरूर भी, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत रखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, गीतों को गाते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपने मन को परमेश्वर में लगाते हैं, हम परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। हालेलुया। उसके प्रतिफल में, उसके बदले में परमेश्वर निश्चय ही हमें कुछ देता है। परमेश्वर के सन्निधान में बिताया हुआ हर एक पल हमारे लिए आशीष का होता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत रखें, एक जुनून रखें, एक तीव्र इच्छा हमारे जीवन में होनी चाहिए परमेश्वर को याद करने की। जो भी कोई कदम उठाते हैं जीवन में, चाहे वो आप व्यापार में कोई कदम उठा रहे हों, आप नौकरी करने जा रहे हों, तो परमेश्वर को याद कीजिए। विद्यालय जा रहे हों, परमेश्वर को पहले स्थान दीजिए। प्रार्थना करके जो है घर से बाहर निकलिए। परमेश्वर जो है आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। इन महामारी के दिनों में जब लोग डरे हुए हैं, लोगों को डर रहता है कि कहीं मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपके ऊपर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने कवच से, अपने लहू के कवच से आपको ढके रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करके जो है आगे बढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर जो है हमें चलाता है। हालेलुया। जब अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया तो वो जो है परमेश्वर का मित्र बन गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो जो है हमें आशीष देना चाहता है। उसके सन्निधान में आने की इच्छा रखिए। जो वो कहता है उसको अपने जीवन में लागू कीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। हालेलुया। एक बार पॉल योंगिचो ने, जो कि बहुत बड़े प्रचारक थे, उन्होंने जो है प्रार्थना में परमेश्वर से एक मोटरसाइकिल मांगी और प्रार्थना की कि मुझे जो है इस प्रकार की मोटरसाइकिल चाहिए, नीले रंग की मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें गियर लगी हो, वैसी मोटरसाइकिल चाहिए। और जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन थी उन्होंने परमेश्वर को बताई और प्रार्थना की। और जो है उन्होंने इस बात को जो है अपनी कलीसिया में विश्वासियों को बता दिया और कहा कि मुझे परमेश्वर ने मुझे मोटरसाइकिल दे दी है। उधर के जवान जो है मजाक के तरह उन्होंने जो है कहा कि पास्टर जी संदेश पूरा हुआ, आराधना पूरी हो गई, उसके बाद जो है फेलोशिप का टाइम था। तो पॉल योंगिचो से जवानों ने पूछा कि आपकी मोटरसाइकिल कहाँ है, दिख नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि अभी जब एक बहन गर्भ धारण करती है तो उसे 10 महीना लगता है बच्चा
डिलीवर करने में। तो मेरा जो है परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली है, उसने जो है दे दिया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, विश्वास के जरिए से परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। और ऐसा विश्वास करके उन्होंने प्रतीति की कि जो है परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, जैसा मैंने मांगा था वैसे ही मोटरसाइकिल मुझे मिल गई है। ऐसा सोच के, ऐसा कहकर उन्होंने जो है जवानों को बताया। फिर कुछ महीनों की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने हुए होंगे। उधर उस स्थान पर जहाँ पर, जिस शहर पर पॉल योंगीचो रह रहे थे, उधर ही एक मिशनरी थे जो कि उधर सेवकाई करते थे। उनका जो है तबादला दूसरे शहर में हो गया और वो जो है अपनी पैकिंग करने लगे। तो जाते वक्त उन्होंने पॉल योंगीचो को बुलाया कि वे जो है आके प्रार्थना करें और जो है उनको रुखसत करें। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब पॉल योंगीचो उस घर में पहुंचा, मिशनरी के घर के बरामदे में जैसा उन्होंने प्रार्थना की थी वैसा ही मोटरसाइकिल उधर खड़ा था। तो वो बड़े ही खुश हुए, परमेश्वर ने उनकी सुन ली है। लेकिन अभी अनुमति नहीं मिली थी कि वो मोटरसाइकिल ले जाए। तो वो अंदर गए और जो उनके लिए प्रार्थना वगैरह की। गाड़ी में लॉरी बाहर खड़ा था, तो वहाँ पर सामान लॉरी में चढ़ रहा था। तो मिशनरी ने बोला ये मोटरसाइकिल भी अंदर रखो लॉरी में। तो अंदर रखा गया। तो वो अंदर जा नहीं रहा था, जगह नहीं थी और वो फिर से बाहर ही निकल रहा था। तो मिशनरी ने देखा कि ये अंदर लॉरी में जा नहीं रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है। तो उन्होंने कहा इस मोटरसाइकिल की अब ज़रूरत नहीं है, कृपया करके इसको जो है रहने दो। तो उन्होंने पॉल योंगीचो को कहा कि भाई ये कृपया करके आप ले जाइए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उन्होंने उस मोटरसाइकिल को ले लिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर किसी भी तरीके से जो है हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। उस सेवक के, पॉल योंगीचो के ज़रूरत को परमेश्वर ने पूरा किया। उनके विश्वास के जरिए से वो जो है उनको प्राप्त हुआ। हमें भी जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। भाइयों और बहनों, जो भी हमारी प्रार्थना है परमेश्वर से जो है प्रार्थना में जब मांगते हैं, ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें दे दिया है। प्रतीति करनी चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे इतना महान है, वो सब कुछ देता है। जब भी हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हमें देता है। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि जो भी हम मांगे वो हमें मिलेगा। हालेलुया। विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है। हालेलुया। हमारे जीवन में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जब तभी हम जो है परमेश्वर की संगति में रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। चौथी बात, हमें सच्चे मन और स्पष्ट विवेक का निर्माण करना। अपने दिल में जो है सच्चे मन को और जो है स्पष्ट विवेक को हमें तैयार करना, निर्माण करना है। इब्रानियों की पुस्तक 10:22 में इस प्रकार लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके हृदय का छिड़काव लेकर और देह का शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। हमें शुद्ध विवेक और सच्चे मन को लेकर परमेश्वर के सन्निधान में आना है। परमेश्वर यही हमसे चाहता है। हमारा मन जो है सच्चा होना चाहिए। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर के सामने छुपी है। इसलिए हमें जो है परमेश्वर के सामने सच्चे मन के साथ आना है। कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ भी जो है गुप्त नहीं रखना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ नंगा है। हालेलुया। वो जो है मनुष्य को के मुंह को नहीं देखता, परमेश्वर जो है हमारे मनों को देखता है। हमारे मन को जो है स्पष्ट रखना है। इसलिए परमेश्वर के नज़दीक आने वाले को चाहिए कि जो है सच्चा मन रहे। हालेलुया। सच्चा मन के साथ परमेश्वर के पास आना है, झूठे मन के साथ परमेश्वर के पास नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। आत्मा के साथ करनी चाहिए, सच्चाई के साथ करनी चाहिए। सच्चा मन होने के लिए हमें चाहिए कि संयम बरतें। जीवन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो है हमारा मन जो है गलत की तरफ भागता है। तो हमें चाहिए कि हमें सच्चे मन के लिए संयम बरतें। हम पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें संयम बरतना है। बहुत सी चीज़ों को जो है हमें इनकार करना है। हालेलुया। जो भी गलत बातें हैं उनको इनकार करना है, सच्चा मन रखना है। जो परमेश्वर को प्रिय है वो हमें करना है। हालेलुया। जो भी अपनी इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएंगे तो हमारा मन सच्चा नहीं रहेगा। हालेलुया। दूसरा, हमारा विवेक जो है स्पष्ट होना चाहिए। विवेक ही ऐसी चीज है जो हमें गलत और सही का
फर्क बताती है। यदि हम गलत, हमारा विवेक यदि स्पष्ट होगा तो हम जो है परमेश्वर के सन्निधान में आ पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगी। हालेलुया। स्पष्ट विवेक हमारा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। भजन संहिता 145 का 18 में लिखा है, हालेलुया, कि हम जो है सच्चे मन के साथ और स्पष्ट विवेक के साथ परमेश्वर के सन्निधान में आए। हमें चाहिए हमारा मन जो है सच्चा हो और स्पष्ट विवेक हो। हालेलुया। सच्चा मन बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पवित्रता के वजह से हमें मिलता है। हालेलुया। जब हम पवित्र होंगे हमारा मन सच्चा होगा, और स्पष्ट विवेक तब होगा जब हम विवेक को परमेश्वर के वचनों के आधार पर जो है हम जीवन बिताएंगे। गलत और सही को जो है जब जैसा हमारा विवेक बताएगा वैसा हम करेंगे तो हमारा जो है विवेक स्पष्ट रहेगा। हालेलुया। मनुष्यों के सामने और परमेश्वर के सामने हमारा विवेक जो है स्पष्ट होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या आशीष मिलेगी। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, चर्च जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, गीतों को गाते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, उसको खोज करते हैं, हमें क्या मिलता है? परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यूहन्ना इस बात को स्पष्ट करता है। यूहन्ना की पुस्तक 15:7 में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बने रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की चाहत रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमारा सच्चा मन और स्पष्ट विवेक से हमें क्या मिलता है? परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम जो कुछ भी हम मांगेंगे, जो भी हमारी जरूरत है, जब हम परमेश्वर से मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। हमें सच्चे मन से, स्पष्ट विवेक से परमेश्वर से मांगना है। हाले उसकी उपस्थिति की चाहत रखनी है। हालेलुया। विश्वास करना, जो कुछ भी जब मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। दूसरी आशीष जो हमें मिलेगी, फल लाएंगे। जो भी हम काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तीसरी बात जो हमें मिलेगी, हम उसके यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे। हालेलुया। चौथी बात, यीशु और पिता के प्यार को अनुभव करेंगे। वो कितना प्यारा है, इस बात को हम अनुभव करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम उसके आनंद को अनुभव करेंगे, हम उसके दोस्त बन जाएंगे। हालेलुया। वो इतना करीब हो जाएगा। ये सब आशीषें हमें मिलेगी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत रखेंगे, जब हम उस पर विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर इन आशीषों से हमें भरेगा। हालेलुया। यही नहीं, पहली यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 28 और 29 में इस प्रकार पढ़ते हैं, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उसमें जन्मा है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होगी तो जो चाहे हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। दूसरा, हम फल लाने वाले हो जाएंगे। तीसरा, चेले ठहरेंगे, यीशु और पिता का प्यार को अनुभव करेंगे, उसके आनंद को अनुभव करेंगे, हम उसके दोस्त ठहरेंगे। यही नहीं, जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, इस बात को हर भाई बहन जान ले। और जब यीशु मसीह आने वाला है तो हमें हियाव होगा, हमें कॉन्फिडेंस होगा कि हम जो है सही हैं और हम लज्जित नहीं होंगे, हम शर्मिंदे नहीं होंगे। हालेलुया। हम सही होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हम उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति। दूसरा, हम जानेंगे कि वह धर्मी है। हम ये जान पाएंगे कि वो धर्मी है और हम भी जो है धर्मी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें जो है उसमें पैदा होने देगा, हमें धर्मी बनाएगा और हम धर्म के काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत रखिए भाइयों और बहनों। उसका जुनून हमारे जीवन में होने चाहिए। जो भी काम हम करते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं, उसमें उसको जो है प्राथमिकता दीजिए। उसको परमेश्वर जो है, परमेश्वर की हर एक के जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। बहुतायत का जीवन देने के लिए परमेश्वर इस संसार में आया और वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में रहें। हालेलुया। और आशीष को पाएं। हालेलुया। भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र दिन में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। अभी जो है परमेश्वर हमारे बीच में है, हर एक को स्पर्श करना चाहता है। आइए हम अपने मनों को उसकी तरफ करें। हालेलुया। जो वचन हमने सुने हैं वो हमारे दिल में अधिकाई से बसे और हम
परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत करने वाले हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे आशीषों के लिए, तेरे वचनों के लिए। परमेश्वर ये जो वचन हमने सुने हैं वो अधिकाई से हमारे दिल में बसे। परमेश्वर जो भी परमेश्वर आज ऑनलाइन जुड़ा है सबके जीवन में परमेश्वर ये वचन अधिकाई से बसे। परमेश्वर सब लोग परमेश्वर तेरे संगति के हालेलुया परमेश्वर जुनून में जीवन बिता सकें। हालेलुया हर काम जो वे करते हैं उसमें तेरी आशीष को प्राप्त कर सकें। हालेलुया अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया सबको आशीष दे परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तू देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।